आपको सीधे लिए चलते हैं। We are developing these stations, strengthening them, and also creating extra capacity in them by developing additional loop lines, by developing rake points, by developing areas where you can park the trains, what we call stabling. So stabling line, rake line, ये सब के सब इसमें पूरी हो रही है. Also, sir, just one more. When we are talking about the Manmad line development, so maximum trains that move from Delhi to Bangalore or majorly in Karnataka move through Manmad, and it is virtually impossible to have a Tatkal ticket or a short planning ticket in that area, given that till Manmad it's always fixed, given that it is close to Shirdi and it, offers the closest station. So are we planning to also have more passenger trains on this route, given that the passenger capacity is quite high on this route? You're right. Almost every month you would have noticed that we are introducing new trains, and that is because we have been able to add a lot of new tracks. In the last 11 years, we have added about 34,000 kilometers of new tracks, which includes gauge conversion, doubling, tripling, quadrupling, new lines. So that is a huge jump if you compare it in the past. Now we are adding practically sometimes 5,000 kilometers, sometimes 4,000 kilometers. That is the pace at which we are adding new tracks, which is almost like 12 kilometers a day. So that kind of pace of track construction is helping us to increase the number of trains, and we are able to add more trains. Practically every month, you must have noticed in the news, we are adding new trains. So, third row, starting from 272. सर, मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं हिंदुस्तान समाचार से हूं। सर, मेरा सवाल ये है कि जो रेलवे के नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे कैपेसिटी थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन या डबलिंग की जा रही है, क्या उनमें गति के लिहाज से उसको स्पीड बढ़ाई जाए, इसको लेकर के हम किस स्टैंडर्ड का पालन कर रहे हैं? और जैसे कई अध्ययन होते हैं कि इतना कार्बन एमिशन बचेगा, इतना माल ढुलाई बढ़ाएंगी, तो गति कितनी बढ़ेगी, इससे समय की कितनी बचत होगी, ऐसा भी कोई अध्ययन होता है सर क्या? बिल्कुल, और बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। इन 10 वर्षों में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए एक मेजर प्रोग्राम हाथ में लिया, वो है ट्रैक की कैपेसिटी को, स्पीड पोटेंशियल को इंक्रीज करने का। एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपको बताता हूं। करीब करीब 1,04,000 किलोमीटर अभी रेलवे ट्रैक्स अपने हो गए देश में। 10 साल पहले ये नंबर था करीब 72,000 किलोमीटर के आसपास का था, और 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के, 110 किलोमीटर पर आवर स्पीड के, अभी पार्लियामेंट में भी जवाब दिया है, दैट नंबर इज नाउ बिकम 78% ऑफ द ट्रैक्स इन द एंटायर रेलवे नेटवर्क में हैज बिकम 110 kmph का रेलवे नेटवर्क, और प्रैक्टिकली हर महीने ये इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखो, already we have now crossed 720 crore people carrying. Last year we crossed 720 crore passengers. That's a huge number. Or we have become second largest cargo carrier in the entire world by carrying 1.6 billion tons of cargo last year. Second largest cargo carrier in the world. So overall बहुत cargo में करीब मेरे ख्याल से 2014 में this number was about 1 बिलियन के आसपास था। 1 बिलियन से 1.6 बिलियन पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। 60% जंप बहुत बड़ी बात होती है, और पैसेंजर्स 720 करोड़ मेंटेन करना इज अनदर वेरी बिग फैक्टर। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए रेलवे का ओवरऑल अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड रो मिडिल, ओके, फोर्थ रो प्रकाश, 214। Yes, sir. As you mentioned that the NCD will raise around 20,000 crore. Could you please share details on how this money will be raised and over what period? गवर्नमेंट से जो 2000 करोड़ रुपीस हमें मिलने हैं, 500 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष, इससे हम मार्केट से जो कमर्शियल बैंक्स हैं या बॉन्ड्स हैं वहां से फंड मोबिलाइज करते हैं। 4 years, yes.
सर Yes, left. नमस्कार सर, पंकज हूँ जनसत्ता से। सर ये फूड टेस्टिंग लैब का जो प्रोग्राम है हमारा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अभी तक इसमें कितना हम लोग कर पाए हैं और आगे जो अब अप्रूवल आया उसमें कितना ऐड ऑन हो जाएगा? 100 लैब्स ऐड करेंगे इस प्रोग्राम से। और ऑलरेडी कितनी लैब्स होंगी? 200 प्लस सर, इसमें हमने 205 ऑलरेडी प्रोजेक्ट सपोर्ट किए थे, जिसमें से 165 जो है ऑलरेडी फंक्शनल है, लैब्स कंप्लीट हो चुकी हैं। और इस बजट अनाउंसमेंट के हिसाब से 100 लैब्स हम और सपोर्ट करेंगे। अच्छा लगता है ऑफिसर्स एकदम स्पेसिफिक आंसर दे रहे हैं। Fifth row, anybody? Yes, you want to ask? Hi. सर मैं अजय हूँ सकाल न्यूज़पेपर से। ये जो इटारसी नागपुर और औरंगाबाद परभणी ये दोनों प्रोजेक्ट है, कब तक पूरे होंगे इसका? तो केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव को सुन रहे थे आप, जिनकी ओर से उनके विभाग से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दी गई। रेल विभाग से जुड़ी हुई कि 1,04,000 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। यह आंकड़ा हर महीने बढ़ रहा है, ये उनकी ओर से बताया गया। रेल मंत्री ने कहा कि हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्गो कैरियर है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां जो फैसले लिए गए हैं दरअसल कैबिनेट की मीटिंग में, वो उसके बारे में ही बता रहे थे केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। 11 सालों में रेल नेटवर्क कितना मजबूत हुआ है, कितना उसका विस्तार हुआ है, इसके बारे में उनकी ओर से बताया गया। 1,04,000 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं, ये भी उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है। और अब बात करेंगे देश